Hello and welcome to another episode of Candid Talks with Bharat V. This is Bharat Vatsa, your host of the show, and in today's episode, we will be talking to a dynamic police officer, Prema Patil, having around 10 years of experience in police department. You must be wondering, why a police officer? Well, she is not just a police officer who won many awards, but also had won the title of reigning Mrs. India 2019 and the title Woman of Substance. The list does not end here, my friends. She also represented India at Mrs. Universe 2019 finals held in December at China and won the title of Mrs. Universe 2019 Woman of Bravery. India is truly proud to have such a daughter. So let's welcome her with a round of applause. Prema Patil. Hi, this is Prema Patil, an assistant police inspector and winner of Mrs. Universe Bravery 2019. और आप मुझे सुन रहे हैं on Candid Talks with Bharat V. Hi Prema. Welcome on today's episode of Candid Talks with Bharat V. Thank you so much for joining us today. Yeah, hi Bharat, and thanks for inviting me for this talk. Sure, my pleasure. Prema, you are a police officer, and I understand you are continuously on duty. There is no lockdown for the police department in this pandemic situation as well. How exactly are you, handling yourself and your family in this COVID-19 pandemic? Yeah, actually, this is a very tough job, and yes, police department and also our doctors and all the uh, other peoples who are Mhm. directly in this field. Yeah, we are facing a tough job, but yes, we are educated and we know the what we should take care, and uh, we should take care about ourselves. Mhm. When I'm back to my home, I get properly sanitized. We are taking utmost precautions, Okay. and yeah, I have a kid at my house, Okay. so I have to be very careful, very safe, and very properly sanitize myself, and then I Mhm. enter the house. Yeah, So how small is your kid? कितना छोटा है वो? he's 3 years old. three अच्छा. years old. Okay. Okay. So the more reason for you to be, taking Yeah. precautions. Yes. So Yeah. आप लोग डॉक्टर्स के साथ मिलके आप लोग ये बाहर are you trying to do some activities or you're doing your generic police activities uh, See, आजकल? हाँ, अगर आप मेरे बारे में स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो हम्म. एक्चुअली आई एम वर्किंग एट ऑफिस ओनली. मैं अच्छा. प्रॉपर फील्ड पे नहीं हूँ, पर ओके. बाकी जो हमारा टीम्स है वो कई टीम्स डॉक्टर के साथ वर्कआउट कर रहे हैं. अच्छा. तो या देयर आर टू टीम्स, सम वर्क्स एट ऑफिस एंड सम वर्किंग ऑन फील्ड. ओके. तो ओके. या Understood. So, यस. Prema, you are posted in Pune currently. Which place do you belong to originally? I'm from Karad city, Okay. Satara district. Yeah, it is अच्छा. from Satara district. Yes. Okay. So I can say मतलब basically पुणे ही हुआ वो भी. When did you actually decide, that you want to become a police officer? And I'm not asking a racist question here, because being a girl, typically, उनके बहुत ambitions रहते हैं कि हाँ मुझे probably, I want to become a doctor या I want to become a singer or a model or an actor. But आपने पुलिस ऑफिसर बनने का क्यों सोचा? अ, पता है आप, हम जो इंडियंस है हमारे हम्म. ऊपर ना ये बॉलीवुड का बहुत इफेक्ट रहता है. Yes. When I was in 7th standard ना, that time one film was Tejaswini. Correct. That was Correct. too popular at that Yes. time. Yes, I have seen that I film. think that, yeah, I think that made some impact on my mind. अच्छा. And basically, I was more attracted towards the uniform. Okay. Means I wanted to join army या फिर police department. अच्छा. And the greatest of that was कि मैं मेरे माँ बाप की इकलौती
लेडी गर्ल चाइल्ड हूँ, अच्छा, तो उनको कन्विंस करना था कि आई एम गोइंग टू जॉइन अ पुलिस ऑफिस, आई मीन पुलिस डिपार्टमेंट, तो वो एंड आई कन्विंस वांट टू। करना तो और ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा यस, आपके लिए। बहुत मुश्किल था, ओके, बट यस माय मॉम एंड डैड वाज विथ मी, दे वेलकम माय डिसीजन, अच्छा, एंड यस आई एम देयर। परफेक्ट। एंड आई बिलीव आपने जो ये एग्ज़ाम किया था, ये क्लियर इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, आई थिंक यू क्लियर्ड द एग्ज़ाम एंड यस, joined the यस, police academy. So, यस, यस। which was your posting? Where exactly were you posted earlier, and which was your first posting? Yeah, my first posting was Mumbai city. Okay, Yeah, I acha, was there for 5 years, okay. and then I was transferred to Pune city. And after joining the police department, you joined there as what? Sub Yeah, inspector? yeah, police sub inspector. Okay, Yeah, okay. And when exactly did you get promoted to API? in the year 2014. Acha, okay, Yeah. perfect. So, how will you describe yourself as a police officer, Premaji? I mean, how Uh, difficult, or is it easy, or is it difficult, being a police officer? Actually, it is difficult because Okay, for 24 hours we have to be in all negative surrounding, okay. because there are continuously, जैसे कि हम जॉब पे चले जाते हैं, लोग कहते भी है कि कभी पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट की दहलीज पे ना जाए, हाँ, हाँ, पर हमें तो वहां पे जाना पड़ता है, हमारा जॉब रहता है। तो right, कंटिन्यूअसली ऐसे कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं कि जैसे कि किसी का कुछ खो गया, कुछ अच्छा हो जाए तो कोई पुलिस के पास आता नहीं है। correct. सो बेसिकली मैं बोलूंगी हमको डायनेमिक एंड स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। Okay. So I can describe myself that yes, I am dynamic and I am also stable, because stable होना भी Hmm. बहुत जरूरी है। Yes, जैसे Exactly. कि only, हाँ, पुलिस ऑफिसर है लेकिन एक माँ हूँ, एक Right. बीवी हूँ, Correct. तो we have to get switch on and switch in between, means एक एक रोल से दूसरे Mhm. रोल में जाने के लिए स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ होना जरूरी है। Correct. Actually, सो वही मेरा अगला क्वेश्चन था, how difficult it is, to balance between the family and your police duty. So, Yes, वही it मेरा is more Mhm. difficult. Yeah, वो more difficult. Basically मैं मेरा प्रिंसिपल है कि मैं जॉब का कौन सा भी टेंशन प्रेशर घर पे नहीं लाती, तो वही Okay. स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, या तो कि घर पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपने हस्बैंड के साथ कभी कुछ डिस्कस किया होगा कि आज आज इतना ज्यादा टेंशन था, आज ये काम हुआ, आज वो काम हुआ, ऐसा कुछ डिस्कशन कभी घर पे नहीं होता है? नहीं होता है वैसे। क्या है ना, अगर कोई डिस्कशन है कि हाँ मुझे किसी की राय चाहिए, तो यस आई विल डेफिनेटली स्पीक विथ माय हस्बैंड, ओके, और पर ज्यादा नहीं करना, क्योंकि क्या होता है ना, फिर हम उसी में घुल जाते हैं, फिर वी जस्ट ओके, लॉस्ट इन दैट प्रॉब्लम ओनली। सो अंडरस्टैंड। हाँ, अगर कुछ चाहिए मुझे कुछ, तो हस्बैंड से बिल्कुल उसके बारे में बात करते, क्योंकि शेयरिंग भी होना चाहिए करेक्ट। ताकि वो प्रेशर ना बना रहे। या तो आपके हस्बैंड इज ही इन आईटी इंडस्ट्री, और किस फील्ड में वो जॉब करते हैं? yeah, he's in IT. ओके, Yeah, ओके। हाँ। So, this particular lockdown, I think it is supposed to be the largest nationwide lockdown ever in the history of this entire world. राइट। मुझे लगता नहीं है कि और किसी कंट्री में इस लेवल पे नेशन वाइड लेवल पे इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ होगा. So, although this is very much required for the entire population of India to keep them safe, and we are asking them to stay home, but at the same time, doctors and police and army, these people are very well working outside on the in the field. So, फील्ड। you being in this police department and performing your duty, how do you think that the police department actually is dealing with it, and how and more importantly, how the family is dealing with this entire scenario?
that their family members are going out in the field and working and towards this Yeah. performing their duty towards the nation. देखो जब से ये लॉकडाउन चालू हो गया है Yeah. और जो लॉकडाउन हम कोविड-19 के लिए किए, Hmm. तब वो दिन से एक ही ख्याल दिमाग में रहता है कि चलो हम ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार है। हम ड्यूटी Uh-huh. पे जाते वक़्त कुछ डर नहीं लगता, पर ड्यूटी से वापस घर जब आते हैं, तो बहुत डर लगता था कि यानी अभी लगता भी है, जैसे Hmm. कि जो स्प्रेड है कोविड-19 का और हम जैसे Right. फील्ड पे वर्कआउट कर रहे हैं, फील्ड पे डील कर रहे हैं। Hmm. तो बेसिकली हम वही लोगों को समझाते हैं कि देखो यू हैव गॉट अ वेरी क्वालिटिव टाइम टू स्पेंड विथ योर फैमिलीज और ये Hmm. टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो स्टे एट होम, स्टे सेफ Hmm. और आप घर में रह के ही हमें मदद कर सकते हैं। सो वी आर Correct. रेजिंग दिस काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम पब्लिक ऑल्सो कि अच्छा. लॉकडाउन में आप क्या कर सकते हैं। पुणे पुलिस ने बहुत सारे आई कैन से महाराष्ट्र पुलिस और सब Hmm. पुलिस ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं या फिर Hmm. सोशल मीडिया यूज करके उनको बहुत कर रहे हैं कि आप घर पे रहो, Correct. आप या और घर पे रह के भी आप हमको मदद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स ले रहे हैं सोशल मीडिया थ्रू वगैरह। तो यस। तो ये जो सोशल मीडिया है आज के टाइम में पहले तो इतना नहीं होता था ये. सो डू यू थिंक इट इज एक्चुअली हेल्पिंग पुलिस एंड probably people like you to perform your duty, and is it making easier for you to carry out your duties? यस एब्सोल्युटली। सी कौन सी भी चीज है तो उसके तो दो पहलू रहते हैं, लेकिन ये Right. डिपेंड करता है अपने ऊपर कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। Correct. तो यस वी आर यूजिंग इट इन अ प्रॉपर वे, वी आर चैलेंजिंग पीपल टू स्टे एट होम थ्रू सोशल मीडिया। और अभी आई थिंक सोशल मीडिया थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक ही टाइम पे रीच कर रहे हैं। So Okay. that can Yeah. make a big appeal Correct. for people to stay at home, to be safe, and what precautions they can take, or anything. If any message we have to pass, it Hmm. is going. यानी बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा लोगों के पास जा रहा है। आपकी बेसिकली Yes. रीच रीच जो है पब्लिक के पास बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ऐसे जा पहुंच रही। जाती है. पहले क्या होता यस था कि बिल्कुल। रोड शोज करने पड़ते थे आपको, लोगों के यस पास जाके मैसेज पास करना पड़ता था. आजकल पास तो आप करना पड़ता। ऑनलाइन सब घर बैठे सबको आप मैसेज पास कर सकते हो इजीली. यस आई बिल्कुल थिंक या बिल्कुल। दैट्स मेकिंग रियली बिग इम्पैक्ट. तो जब आप यस। जैसे आपने बोला कि ऑफिस जाने के टाइम में तो आपको टेंशन नहीं होती, बट जब घर आते हो तो ज्यादा टेंशन होती है. तो वो तो आपकी टेंशन है बिकॉज आपको लगता है कि मैं जब घर जाऊं तो पूरा फुल्ली सैनिटाइज होके जाऊं ताकि और किसी को यस। चांस ना हो यस। कि इन्फेक्ट ना हो. या। बट व्हाट अबाउट योर फैमिली मेंबर्स, उनको उनके दिमाग में क्या चलता रहता है जब आप बाहर जाते हैं फिर घर पे आते हैं? उन्होंने कभी बोला नहीं आपको कि खास तौर पे आपका किड कि भाई किड। मम्मी आप बाहर क्यों जा रहे हो, सब घर में है तो आप भी घर हाँ। पे रहो, आपको यस बाहर यस। जाने की क्या ही जरूरत है? ऑल एक्चुअली वो तो इतना यानी वो इमोशनल जैसा हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि मैं हम्म. ड्रेस करके अभी निकलने वाली थी, ये पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो, तो जैसे कि मैं नहीं मुझे जाना है ऑफिस, तो वो बोल रहा था सब घर पे है, डैडी है, आजी हाँ है, हाँ. आजोबा घर पे है, तो हाँ तुम हाँ. बाहर क्यों जा रही हो, आप बाहर मत जाओ करके। उसको लगता है ओके. कि सब घर में है तो मम्मी भी घर पे रहनी चाहिए। वो राइट. तो बहुत ही यानी बहुत इमोशनल हो जाती है वो टाइम पे, बट ओके. ड्यूटी इज ड्यूटी। और जैसे कि आपने बताया फैमिली मेंबर्स या दे नो दे हैव मीन्स उनके घर में अगर पुलिस ऑफिसर है, डॉक्टर हाँ. है, तो उनके सपोर्ट के बिना ये तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है और पॉसिबल ये नहीं है. कह भी नहीं सकते। बट आई थिंक मैं उनके फेस एक्सप्रेशंस और जो वो मेरे लिए गेस्चर्स दिखा रहे हैं, उससे हम्म. ये महसूस होता है कि वो प्राउड फील कर रहे हैं कि ऐसा कोई तो है जो हम्म. बाहर जाके ये लोगों के लिए काम कर रहा है करके। राइट. एंड दे आर सपोर्टिंग इन ऑल वेज, बिकॉज जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेड्स घर पे नहीं है, हाँ. तो जो काम एज अ लेडी जैसे करेक्ट. मैं बात कर रही हूँ कि हाँ. एज अ आई एम ऑफिसर, आई एम अ हम्म. वाइफ, सो अगर घर वापस आके मुझे कुछ करना है तो नो दे आर सेइंग नो यू हैव, आप बाहर जा रही है, बहुत काम हाँ. कर रही है वहां पे, तो
ये मैं कर लेता हूँ वगैरह, ये सब बहुत सपोर्टिव है। तो उनके ये गेस्चर से पता चल रहा है कि यस दे आर विथ मी, दे हम्म आर सपोर्टिंग मी इन दिस। और माँ का भी ऐसा ही फोन आया था, उसको बहुत लग रहा था कि जैसे बाकी के सब बच्चे उसके घर पे है, हम्म। बाकी लोगों के सब बच्चे घर पे है, खाली मेरी अकेली बेटी बाहर है। बाहर जाते हैं। बट उसको थोड़ा हाँ बाहर आ जाती है, तो वो एक फीलिंग अलग ही महसूस कर रही थी मैं। ये पर राइट। उसको समझाया पुलिस ऑफिसर हो तो बाहर जाना पड़ेगा, करेक्ट। ऐसा। करेक्ट। एंड आई थिंक इस दौरान हर घर की यही कहानी है मोस्टली। कोई ना कोई तो है जो मतलब वर्किंग है, बट अनलाइक पीपल लाइक अस हु आर इन आईटी, जो घर बैठ के भी काम कर सकते हैं, बट देन एंड दे आर स्टेइंग होम। बट हाँ, हमें भी पता चल रहा है कि घर में कितना काम होता है, वाइफ वगैरह कितना काम करती हैं। तो आजकल हम लोग भी जो है उनको हेल्प करते रहते हैं, कभी कभी घर की सफाई, कभी खाने में हेल्प एंड यस। किचन में हेल्प। तो it's a different experience altogether, but I think this entire thing is going to change a lot of perceptions, within the राइट। human being in this current world. So I hope it is for the betterment and we come out of this pandemic situation very soon. या। Okay, so Prema, you also, were facilitated with many prestigious awards like Nari Shakti Award in यस। 2019, then यस। Samaj Ratna Award 2019 से आपको संबोधित किया यस। था, फिर एक समाज बंधिल की अवार्ड 2020 में मिला था आपको। So यस। can you please tell our listeners, something about these awards? ये किस चीज के लिए आपको मिले थे? What exactly do these awards, represent? से 2019 में, हम्म। being a police officer, I tried another dream of mine. I won Mrs. India to 2019 title, Okay. and Uh-huh. then I represented India on international platform Right. for Mrs. Universe 2019, and there I was felicitated with the award of Mrs. Universe Woman of Bravery. Okay. And हाँ, और वहाँ पे ऐसा था, ये जो मिसेस यूनिवर्स 2019 वो चाइना में हुआ था दिसंबर मंथ में, Right. गोंजाव Oh, सिटी है चाइना okay. की। Yeah. तो वहाँ पे ऐसा था कि एक फोरम राउंड था जहाँ पे हमें 3 मिनट्स दिए गए थे, Mm-hmm. और टॉपिक था डोमेस्टिक वायलेंस एंड हाउ वुमेन्स कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ। Okay. तो Okay. उसके ऊपर जो मैंने पूरी ये 10 years ऑफ माय पुलिस करियर, उसमें जो Hmm. मैंने कुछ क्या काम किए थे, क्या कर रही हूँ, ये Mm-hmm. सब वहाँ पे प्रेजेंट करने के बाद और मेरा पूरा पुलिस वर्कआउट सब देखने के बाद उन्होंने मुझे ये अवार्ड वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, Okay. प्रेजेंट Okay. किया। Very सो nice. हाँ, यस। और जैसे कि फिर ये जो नारी शक्ति वगैरह थे, तो उन्होंने ये नारी शक्ति इसलिए दिया कि उन्होंने ये सोचा कि पुलिस ऑफिसर है, उसके Mm-hmm. बावजूद एक अलग कला क्षेत्र जैसा बोले उन्होंने, Correct. तो Yeah. कला क्षेत्र में भी उन्होंने ये हाँ, ये मुकाम पे पहुंचे। तो ये दिस इज अ पावर ऑफ वुमन कि वो कुछ भी हाथ में ले ले तो Hmm. उसको पूरा करके ही Okay. जस्ट रीच दैट पॉइंट। या Okay. और ये जो लास्ट में जो था, ये समाज बंधिल की अवार्ड 2020 में जो मिला है, रिसेंटली आपको अभी मिला है ये शायद। यस, यस। दिस इज रिगार्डिंग माय वर्क इन पुलिस डिपार्टमेंट। जैसे कि हम बहुत सारे चीजों में ये रखते हैं, दिलचस्पी भी रखते हैं। हाँ एज हाँ। अ जैसे कि हमने मेरा एक एनजीओ है, मीन्स आई एम अच्छा। एसोसिएटेड विद दैट एनजीओ। ओके। इट्स नेम इज कार्बोनरी। ये ओके। एक्चुअली मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स ने चालू किया था। अच्छा। तो ओके। अपना पुणे से ये वेल्ले करके गाँव, छोटा सा गाँव है, वहाँ पे बहुत ही ऐसे गरीब बच्चे हैं हम्म। जिनको पढ़ाई के लिए उनके पेरेंट्स के लिए मुश्किल होती है।
तो एक समाज उन्नति न्यास करके एक संस्था है। Okay. तो ये संस्था ने क्या किया है कि इन बच्चों के लिए रहने का, खाने का और स्कूलिंग का पूरा जिम्मेदारी ये उठाते हैं। अच्छा. तो Okay. जैसे हमको ये पता चला कि वहाँ पे ऐसे बच्चे हैं, तो हम लोग वहाँ पे जाके उन बच्चों को अगर कुछ पढ़ाई में दिक्कतें आती है, जैसे कि किसी को इंग्लिश में है, किसी को मराठी या मैथ्स में है, तो वो सब्जेक्ट्स हम उनको सिखाते हैं। या Okay. फिर जैसे मैं वहाँ पे जाती हूँ तो उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बताती हूँ कि क्या करना चाहिए, तैयारी कैसे करते हैं, हम्म. क्या नहीं। तो मैं जैसे तो ये उनके एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वी लाइक अच्छा. टू जस्ट हाँ। Okay. सो ये हमारे तो ये सब जानने के बाद मुझे ये अवार्ड दिया गया था कि चलो पुलिस ऑफिसर है, फिर मॉडलिंग में भी है, पर ये समाज कार्य भी ऐसे करते हैं। और Okay. बस यही नहीं, जो भी मुझसे पॉसिबल हो जाता है तो उसमें मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ और मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। That's nice. Very nice. Hi, this is Prema Patil, an assistant police inspector and winner of Mrs. Universe Bravery 2019 और आप मुझे सुन रहे हैं on Candid Talks with Bharatvi। So, uh, being a police officer, and as you said, कि that was your main dream that आप police officer बनना चाहते हैं. But then you also, tried in a beauty pageant, and you also won this Mrs. Universe Bravery 2019, Yes, title in China. तो yes. आपने इसमें ट्राई करने का कैसे सोचा? I mean, how did you transform yourself from a police officer to a As a model. as a model, as a beauty queen, and can you tell us something about this journey of yours? Yes, of course. And actually this credit goes to my husband अच्छा. क्योंकि वो always he keeps saying that you never change your life until you step out of your comfort zone. Right. Change begins at the end of your comfort zone. So Correct. I always कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं पुलिस हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती. Always I Uh-huh. keep trying, but he says no, you can try, you can just try, come out of your comfort zone and try this and try that one. Right. So 2019 was a big change in my life. Okay. Okay. And it's a very difficult to be a police officer, to change a police officer into a modern, because पूरी लाइफ एकदम Hmm. स्ट्रिक्ट एंड फॉर्म Correct. रह के सब I know. I mean, पुलिस this must have been quite a transition for you. क्योंकि यस जब आप पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो you have to go through that rigorous training, and you have ट्रेनिंग to be in यस that complete discipline रहना चाहिए. यस And all of the या sudden then you are in model kind of a situation. यस So जस्ट इमेजिन भारत जी कि हम परेड करते हैं जहाँ पे हम वी आर वेरी स्ट्रिक्ट हाँ, एंड correct. यू नो Yeah. फुल बॉडी ऐसे एकदम स्टीफ Straight. जैसे Yeah. दिखती है ये Yeah. स्ट्रेट एंड स्टिफ or suddenly I'm trying a ramp walk where we have to be so delicate. Correct. So that was actually a challenge for me. This So did was a you real go through challenge. some sort of uh, practice, Grooming sessions. grooming sessions? Yes, sessions. Yes, definitely. आपने But वो after एक I फिल्म won, देखी है? सॉरी टू इंटरप्ट. आपने एक वो फिल्म थी, सैंड्रा बुलक की एक फिल्म थी, मिस कंजेनियलिटी. आपने yeah. वो देखी है फिल्म? So, Yes, so yes, आपका ये, yes, yes. that entire thing came in, in front of me, and I could actually imagine वो आपके लिए कैसा रहा होगा. I mean, that entire transformation Yes, it's from being a, a cop, and then all of the sudden, a model. So, how much see, time and did you actually take to uh, transform into a, actually, model? actually, I was working almost 1 month. Yeah, 1 month I took. Uh, सबसे challenging था to Okay. walk on a 6-inch hill. Wow. Means God have gifted me a nice height, so Right. I never tried a hill in my life. So If I it may was ask, always a if I may ask, what is your height? 5'7". Wow. Okay.
That's a nice height. So yeah, and suddenly I have to walk on a 6 in hill, and I was so shocked, and continuously I was telling that no, I can't do this for my husband ना, कि चलो हम उनको पूछ लेते, लेकिन in modeling Hmm. it's a mandatory to walk on a hill. Okay. Yeah. Then I started practicing late night. Means whole night I was practicing on that hill. I just bought a hill and I was practicing on that. Uh, but the confidence was rising. जैसे कि वो मैं पार कर रही थी एक एक स्टेप, तो तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था. आपने कभी पहले हील्स कभी नहीं पहने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ओके. ओके. Yes. So practice makes a man perfect. करेक्ट. That's it. या, Uh, एब्सोल्युटली. तो आपको कभी ऐसा चांस मिला था कभी टू प्ले एज अ कॉप while being in a beauty pageant, just like Sandra Bullock did in Miss Congeniality film? no, not yet. But who says what will be the next? Okay. Okay. Mm, Okay. So how was this overall experience of Mrs. Universe pageant? आपके लिए ये first time at international level आप गए, which was held in China. So, how was yes, this overall experience for you? yes. And It for how many wa- months you were out in China? और आपको छुट्टी लेनी पड़ी थी अपने पुलिस ड्यूटी से? yes, yes. See, it was totally a learning experience because it was my first international trip ever, Okay. and I totally went alone. So I अच्छा. have to handle, and yeah. And the best part of this pageant was that I made about 90 delegates Okay. from Okay. different countries, Mm-hmm. and just we got nice bonding over each other, and just we Right. came to learn new things, new culture of each and every country. Mm-hmm. So it was a nice experience, and Okay. we were there for almost 12 days. Yeah. Okay. Yes. Okay. So 12 Yes. days आप I totally छुट्टी पे छुट्टी पे, रहे होंगे. yes. Okay. All alone, हाँ. So आप And yes, I आज भी took the, उन लोगों के साथ टच में हैं जिनसे आप yes, वहाँ पे मिले थे? yes. Thanks to the social media, जैसे कि मैंने बताया था. Yeah, I know. Oh yes, we are in touch in with them. Yeah. So मेरा अगला सवाल actually it was regarding who is your main support behind your all hard work, which आप ऑलरेडी बता चुके हैं, बिकॉज इन सब के पीछे आपके हस्बैंड का हाथ है. ही Husband. फोर्स Yes. यू टू ट्राई समथिंग डिफरेंट इन लाइफ. and Yes. and as you said, आज भी वो in this kind of a lockdown situation, he is handling and managing the Yes. entire Yes. family at home. So I Yeah. mean, and being in IT industry, since even I am in IT industry, I know it's not very easy to manage that. It's very difficult. So hats off to him as well, so that he is handling his work as well as Yeah. family and home. Yes. Okay. Family. Yes. Yeah. Yes. Yeah. And सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं एक छोटे बेटे बताना को भी चाहती हूँ. वो हैंडल कर रहे हैं. Yes. Yeah. Yes. हाँ जी. यहाँ पे एक मैं बताना चाहती हूँ कि हमेशा हमेशा मैं ये इंक्लूड करती हूँ मेरे स्पीच में, यहाँ पे कि जैसे सब कहते कि behind every successful man there is a woman, Woman. but Yeah. when it comes to the when it comes to the successful woman, there is Yeah. an entire family, Correct. because she's connected to each and every person of the family. Right. कि हम ऐसे नहीं बता सकते कि खाली हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया. नो, Hmm. हस्बैंड के साथ मेरे इन-लॉज थे, फिर मेरा बच्चा है, तो कंप्लीट फैमिली इज बिहाइंड अ सक्सेसफुल वुमन. Okay. Absolutely. Absolutely. So this brings us to the end of part 1 of the episode. तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा अगले एपिसोड में with Prema Patil. We will continue our discussions with her in our next episode of Candid Talks with Bharatvi. Stay home, stay safe, and stay tuned for part 2. दुआ में याद रखना. जय हिंद.